Hello guys. Focus now. Tell me the homework. You have got homework? सो जाने का ना पहले भी कुछ होगा Take out the homework, sir. दोनों आया? Both में comparative. चलो भाई ध्यान दो इधर चलो फोकस सम नंबर 28 सबसे पहले शेयर कैपिटल 60,000 का 72,000 इंक्रीज ऑफ 12 दैट इज 20%. रिजर्व्स एंड सरप्लस 24 का 30 इंक्रीज ऑफ 6 दैट इज 25%. नेटवर्थ इज 84,000 का 1,02,000 इंक्रीज ऑफ 18,000 दैट इज 21.42%. Borrowed funds में आएगा लोन 34 का 57 इंक्रीज ऑफ 23,000 दैट इज 67.64%. Total funds available are 1,18,000 का 1,59,000 increase of 41,000 that is 34.74%. चलो then fixed assets are 1,20,000 का 1,56,000 increase of 36,000 that is 30% increase. You got that? Net working capital उसके अंदर आएगा आपका current assets are 28 का 27 that is decrease of 1,000 which is 3.57% का decrease. 3.57% का decrease. Less current liabilities 30 का 24 decrease of 6. ये रॉन्ग है किसका है ये 30 का 24 इज डिक्रीज ऑफ 6 विच इज 20% डिक्रीज ये डिक्रीज है. एंड नेट वर्किंग कैपिटल -2 का +3 हो रहा है तो इंक्रीज ऑफ 5,000 एंड नील परसेंटेज में डैश. डोंट राइट नील इट्स डैश. जीरो नहीं है वो इंफिनिटी है तो डैश. इज इट क्लियर? नील मीन जीरो हो जाएगा सो पुट अ डैश. And total funds applied are 1,18,000 का 159,000. There is an increase of 41,000 which is 34.74%. Is this clear? That was your comparative balance sheet. Then there was comparative revenue statement. उसमें sales 4 lakh का 6 lakh हो गया है. Absolute change 2 lakhs. Percentage 50% increase. Cost of goods sold 24 का 56 हुआ है. So that is increase of 32,000 which is 133.33%. Gross profit is 3,76,000 का 5,44,000. Increase of 1,68,000 which is 44.68%. Less indirect expense. Shut up.
16 का हो गया 24, increase of 8,000 which is 50%. Net profit before tax 3,60,000 का 5,20,000 which is 1,60,000 का increase, that is 44.44%. Less tax 180 का 260, increase of 80 which is 44.44%. And net profit after tax is 180 का 260 which is increase of 80,000, 44.44%. आया ये दोनों? वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल का सील समझा? -2 का +3 हो गया तो इंक्रीज ऑफ 5 और आपका जो परसेंटेज होगा उसमें डैश बिकॉज इट इज इंफिनिटी डिवाइडेड बाय नेगेटिव फिगर इज इंफिनिटी. इज दिस क्लियर? हेलो चलिए percentage. Now, see, what are the things we have done in vertical statement till now? अभी तक पहले तो नॉर्मल कन्वर्जन किया था, नॉर्मल वर्टिकल बैलेंस शीट फिर नॉर्मल रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाया, उसके बाद कंपैरेटिव बैलेंस शीट फिर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट हमने किया हुआ है लास्ट लेक्चर. Now we are going to do common size income statement. What are we going to do? Common size. What happens in common size? Do we compare anything? Are we comparing 2 years, 3 years ka data or something like that? No. It is a single year ka subdivision, right? So I want you all to take some number 8. Look at some number 8. पढ़ो क्या पूछा है पढ़ो. They have asked you to make common size income statement for 2 years. 2 साल का डेटा था. How many columns? 4 columns. How do you make those columns? It is amount, percent, amount, percent. Jaimin and Devan, both of you will be straight out of the class. Right से See, what is the first thing you have to do is convert it into vertical format. जो आपके easiness के लिए वो लोग ने दिया हुआ है. They have given you it in vertical format. दिख रहा है? So just copy down. Starting with net sales. This was 5 lakh. का हो गया 6 lakhs.
बाइक का चाबी गिर गया? बाइक का चाबी किसी का गिर गया क्या? चेक कर लो। लाओ इधर, एक मिनट बताओ, ये है क्या? चेक वो कर रहा है, तुम तुम्हारे चेक भी नहीं कर रहे, इतना हुआ तुम। So first step was conversion it into vertical format, which they had given it to you. So there was no tension. एक इधर हेड आता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बट वो ठीक है, नहीं लिखा था। दो ही सब हेड्स है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद दो ही है, तो सीधा सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लिखा तो भी चलता है। प्रॉपर बहुत सारा आइटम्स है तो कन्वर्ट करो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ऑल। ओके, वर्टिकल फॉर्मेट में दिया तो फिर वही कॉपी कर सकते हो और कुछ मसाला डालने की जरूरत नहीं। अभी रिमेंबर द कॉमन साइज बैलेंस शीट हमने जो किया था उसमें हमने क्या 100% लिया था? टोटल ऑफ बैलेंस शीट, टोटल अवेलेबल, टोटल अप्लाइड फंड्स को हमने 100 लिया था। एवरी आइटम वी टुक इट एज अ परसेंटेज ऑन दोस टोटल फंड्स। Any guess what will you consider as 100% in your fund? Obviously net sales. We'll consider net sales as 100%, and every item you convert it as a percentage of sales. Is it clear? Simple. So पहला साल अलग है, दूसरा साल पूरा अलग. We are not comparing. Are you understanding? So पहले first year का what will be 3 lakh upon 5 lakh into 100? 60%. Amount positive, percent positive, amount negative, percent negative. This is 2 lakh by 5 lakh into 100, which is 40%. 55,000 upon 5 lakh into 11%. This is 10.5%. And this is 18.5%. Simple? हाँ, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हेड के नीचे नहीं आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वही है आपका, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो, उसके हेड के नीचे आता है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का सब टोटल वो नहीं किया तो चलेगा, वो लोग ने दिया है ना वर्टिकल, तो वैसे ही लिखो, इट्स फाइन। एक एक्स्ट्रा हेड बना है तो भी चलेगा, यहाँ पे इनकेस नहीं किया तो भी चलता है। आड़ा टेढ़ा डेटा है तो आप करो सब हेड्स वगैरह सब। समझा क्या किया मैंने? खाली नेट सेल्स को 100% लिया, एवरी आइटम आई कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स। सिमिलरली इन दिस case, this is 60%. 360 upon 6 lakh into 100, it is 60%. This is 40%. This is 12%, 11%, and 17%. 17%. Okay. Now, what is the use of this? So, as I told you, you come to know what percentage of sales are your other items. So, as you can see here, COGS is 60% of sales. So, gross margins कितना है business का? 40%. Gross margins कितना होना चाहिए ideally? 75-80%. क्योंकि आगे expenses के बाद आपका at least 25-30% profit निकले तो अच्छा बात। इधर ग्रॉस मार्जिन है आपको 40, नॉट बैड बट ओके। ग्रॉस मार्जिन ऑफ 40% इज नॉट बैड बट इतना खास भी नहीं है। फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दिख रहे हैं 11-10%, तो फाइनली मार्जिन बचा आपका 18.5%, विच इज डिसेंट इनफ, नॉट सो गुड बट ओके। प्रॉफिट्स आर एवरेज, नॉट टू गुड। Whereas over here again the data is almost similar, खाली 18 का 17% हो गया। तो आपको पता चलता है कि इंडिविजुअल एक्सपेंसेस क्या परसेंटेज पे, सीओजीएस क्या परसेंटेज पे। अभी सपोज आपका सेल का 100% का सीओजीएस 70-80% हो गया तो पहले ही बिजनेस करना ठप हो जाएगा। तो आप सीओजीएस का डिपार्टमेंट को पकड़ोगे, परचेज को पकड़ोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस वाले को पकड़ोगे, कैरेज वाले को पकड़ोगे, और कहाँ गड़बड़ होगी, इतना खर्चा क्यों हो रहा है।
reduce the expenses, try to decrease the expense. तो शायद कोई ग्रॉस मार्जिन बचे फिर नेट मार्जिन बचे. कभी कभी ग्रॉस मार्जिन हाई होता है लेकिन ये एक्सपेंस इतने ज्यादा होते हैं कि नेट प्रॉफिट चना कुरमुरा बनता है. तो फिर इन डिपार्टमेंट्स को पकड़ो, एडमिन डिपार्टमेंट को पकड़ो, सेलिंग डिपार्टमेंट को पकड़ो. यहाँ पे तो आप आराम से खर्चे कम कर सकते हो. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत जगह पे कम ज्यादा हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं. लोचा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस. सीओजीएस में ज्यादा चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता. इसलिए लोग क्या करते हैं, जैसे रिसेशन आता है पहले सैक करते हैं एम्प्लॉइज को, विच इज दिस ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस. सैलरीज खत्म करते हैं, ऑफिस शिफ्ट करते हैं, ज्यादा रेंट से कम रेंट पे चले जाते हैं. सो वो सब खर्चे आप आराम से फ्लेक्सिबल, एडवर्टाइजमेंट कट डाउन कर देते हैं. सो वो ऑल दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो दोज एक्सपेंसेस इजीली कैन बी कट डाउन, कैन बी डिक्रीज. इज इट क्लियर? टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट्स. बट सीओजीएस में ज्यादा चेंजेस पॉसिबल नहीं होता. इज इट क्लियर? तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फंडा समझा क्या करना है? एवरी आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? सेल्स. एवरी आइटम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. आपको इंटरप्रिटेशन नहीं पूछेंगे, समझना अच्छी बात है. आपको सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना है. इसका 8 मार्क्स. एज आई टोल्ड यू, गरीब लोग का चैप्टर. सी नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन 33 खुद से ट्राई करें. उधर ही कर सकते हो, सेम साइड पे कंटिन्यू कर सकते हो. ट्राई क्वेश्चन 33. कम ऑन. एक साल होता तो खाली 2 कॉलम होता है, अमाउंट एंड परसेंटेज. 2 साल है तो फिर 4 कॉलम्स. डन हो गया. It is Arya Mehta. Filoni.
Yeah, next one. When 9 Shivang. Siddha है सिद्धू. Vanshil. चलो. 100%. चेक कर लो आंसर्स. 2.4%. Check the solution. Focus. 33rd sum. Sales are 2 lakh का हो गया है. पहले मैं वर्टिकल फॉर्मेट डिस्कस कर लेता हूँ. सेल्स वो तो दिया है. सेल्स 2 लाख, COGS 150, ग्रॉस प्रॉफिट 50 लेस ऑफिस का 4000, सेलिंग का 6, नेट प्रॉफिट इज 40,000. मिला? You take 100%, sales as 100%, so COGS is 75, gross profit is 25%, office is 2%, selling is 3%, net profit is 20%. मिला? Second year 2,50,000 less 1,70,000 COGS, you get GP of 80. Office is 6, selling is 1, profit is 73,000. Percentage wise, sales are 100%, COGS 68, gross profit 32. Office is 2.5, selling